Hello dear students, very good morning to everyone. And today I am going to take the class on the topic continuity. In the last class we had discussed about different type of function and their continuity in the domain of the function, okay. Like a constant function where it is continuous, we learned that constant function is continuous in every point in its domain, and polynomial function is always continuous, identity function always continuous. These are the three major functions we know. Today I am going to discuss about a very special function which is called greatest integer function, and ये function के बारे में आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मिला है. फर्स्ट ईयर में इस concept को थोड़ा आइडिया आप लोगों को मिला है. Let us I am going to review this particular function again and check that whether it is continuous in all points in its domain or not. That thing we are going to discuss today. Okay. And before going to discuss, let us discuss about greatest integer function. Okay. Now, what is greatest integer function? It is a function defined from set of real number toward set of real number. Okay. इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है. Given by, what is the definition? Given by fx is equal to box x. Okay, means what happened? Suppose this is your set of real number, this is also set of real number. F is a function, okay, from R to R, from this R to that R, okay, and all the real number x, this whatever the real number, their image is what? Suppose x is any element in R, then its image is what? Box x. It is denoted by what? Box x, and which is called what? Fx. Then fx equal to what? Box x. Now what is box x? Box x is a greatest integer it is the greatest integer less than equal than what? X. Very very important. This box x is what? ये जो x का जो image है box x, the image of x is what? Box x, and when you take, this is a real number, and when you take box on this real number, it becomes an integer. It becomes an integer. What are the integers? Integers are 0, plus minus 1, plus minus 2. These are the integers, okay. That means what happened? Value of x, this for any real number, it may be positive, may be negative, may be fractional, may be rational, may be irrational, anything. For every real number, when you take box on this real number, it becomes like these values, either 0 or 1 or 2, whatever be, it will be like an integer. But speciality is that this integer, it is an integer, but it is the greatest integer less than equal than x. Means जो जिसका हम बॉक्स ले रहे हैं उसका इक्वल हो सकता है या उससे छोटा एक ऐसा इंतज़ार होगा. जितना इंतज़ार होगा सब इंतज़ार का सबसे बड़ा जो इंतज़ार है वही होगा. तो थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन लगा होगा. लेट अस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नंबर लाइन, देन यू अंडरस्टैंड बेटर, ओके, एंड गिव एन एग्जाम्पल, then you understand better. Okay, this is minus infinity to what? Plus infinity. This is the number line, okay, and this is suppose 0, and let us take this is 1, this is 2, okay, and this is what? Minus 1. In this way every between two integer, what happened? There is a difference 1, there is a difference 1, there is a difference 1, and in between two integer there are infinite number of real numbers. Okay, this is an integer as well as real number, this is an integer as a real number, but in between them it is also a real number. So there are infinite number of real number. Okay, if I take a point, suppose between 1, 0 and 1, it is called half, or better you can say it is equal to what? 0.5. Point what? 5, which is lying between what? 0 and 1. Now what is the box of 0.5? When you take 0.5 is not an integer, but when you take it box, थर्ड ब्रैकेट में बॉक्स लगा लेंगे तो ये एक इंतज़ार हो जाएगा. ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स ए जैक. बट व्हाट टाइप ऑफ इंतज़ार? इट इज़ एन इंतज़ार लेस देन इक्वल देन व्हाट? 5. It is an integer less than equal than what?
0.5 से छोटा एक इंतज़ार होगा. 0.5 इज़ नॉट एन इंतज़ार, दैट्स व्हाई इक्वलिटी इज नॉट गिवन. सो ये जो बॉक्स होगा ये एक इंतज़ार होगा लेस देन 0.5. एंड व्हाट टाइप ऑफ इंतज़ार? इट इज़ द ग्रेटेस्ट वन. 0.5 से छोटा इंतज़ार क्या क्या है आप चेक कर लीजिए. नंबर लाइन को पीछे और डालिए. ओके, दिस इज द नंबर लाइन minus infinity. Okay, this is -2, this is -3, in this way so on. Okay, so 0.5 से छोटा इंतज़ार क्या क्या है? What are the इंतज़ार less than 0.5? These are what? 0, then -1, then -2, then -3 and so on. Among all these इंतज़ार्स, ये जितनी इंतज़ार से 0.5 से छोटा है उस इंतज़ार का सबसे बड़ा इंतज़ार क्या है? ग्रेटेस्ट वन क्या है? Among all this इंतज़ार 0 is the greatest. 0 is the what? Greatest. And therefore box 0.5 will be 0. इसका वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया कि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? बॉक्स x is an इंतज़ार. What type of इंतज़ार? It is the greatest इंतज़ार less than equal than x. I take an example 0.5 and 0.5 जो बॉक्स ले लिया वो एक इंतज़ार होगा. And what type of इंतज़ार? It is the greatest इंतज़ार less than 0.5. Let us check that is the इंतज़ार less than 0.5. Less than 0.5 इंतज़ार are what type of इंतज़ार? These are what? 0, -1, -2, -3 up to ... Among all these इंतज़ार which one is the greatest? 0 is the greatest and therefore 0.5 equal to what? Box 0.5 equal to what? 0. Likewise box 0.6 उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज 0.6 क्या है इधर होगा 0.9, उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. पॉइंट अगर मैं 99 भी ले लूँ, बिकॉज 0.99 इज लेस देन 1, 0 और 1 के बीच रहेगा, उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. दैट मीन्स व्हाट वी अंडरस्टैंड बिटवीन 0 एंड 1, 0 छोड़ के एंड 1 छोड़ के, बिटवीन 1 छोड़ के, बिटवीन 0 एंड 1 वट एवर बी द नंबर्स आर देयर, सबका बॉक्स क्या होता है? 0 हो रहा है. सबका बॉक्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. सो दिस थिंग्स कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म. इन ए शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? 0 लेस देन x लेस देन 1. अगर x एक अननोन क्वांटिटी है, दिस अननोन नंबर विच इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, दैन इसका बॉक्स, ये इसका बॉक्स क्या हो रहा है? बॉक्स बिकम्स व्हाट? 0. ग्रेटेस्ट इंतज़ार कितना हो रहा है? बॉक्स ऑफ x इज बिकम 0 मीन्स ग्रेटेस्ट इंतज़ार ऑफ x इक्वल टू 0 होगा. फॉर एनी नंबर 0 एंड 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आर देयर, सबका बॉक्स क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, बट रिमेंबर दिस दैट 0 के लिए क्या होगा? सपोज 0 एग्जैक्टली व्हाट? 0. ओके, एग्जैक्टली 0 के लिए क्या होगा? 0 के लिए बॉक्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज यू सी व्हाट आर द इंतज़ार लेस देन एंड इक्वल देन 0. ये जो 0 है उससे इक्वल और छोटा इंतज़ार क्या क्या है? 0 है, इक्वल है 0, इसके बाद छोटा वाला -1, -2, -3 ... ओके. Among all these 0 is the greatest one. Therefore क्या होगा? बॉक्स ऑफ x क्या फिर होगा? 0 हो जाएगा. It means what? When x equal to 0, box of x equal to 0. That means when 0 less than equal than x less than 1, in that case box of x equal to 0. In other words, you can say if x belongs to this side close and this side open, इस टाइप का अगर इंटरवल मिले तो आपका बॉक्स क्या हो रहा है? बॉक्स बिकम्स व्हाट? 0. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ सेम में इफ यू से 1 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 2, 1 से शुरू होकर 2 नहीं होगा, 2 से पहले मान लो आप 1.5 का बॉक्स क्या होने वाला है? व्हाट इज़ द बॉक्स ऑफ 1.5? नाउ 1.5 जो रियल नंबर है उससे छोटा इंतज़ार क्या क्या है? 1 है, 0 है, 1 है, -1, -2, ऑल आर द इंतज़ार्स लेस देन 1.5. Among all these which one is the greatest? 1. So box 1.5 क्या होगा? 1 होगा.
बॉक्स 1.6 क्या होगा 1 होगा, बॉक्स 1.7 क्या होगा 1 होगा, बॉक्स 1.8 1, बॉक्स 1.9 बॉक्स 1.999 इज इक्वल टू क्या होगा, बॉक्स 1.999 इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यह आपको समझना ज़रूरी है। और बॉक्स 1 क्या होगा, व्हाट इज़ बॉक्स 1, बॉक्स 1 इज इक्वल टू व्हाट 1, बिकॉज ये जो रियल नंबर है 1 इज बिलोंग्स टू आर, उसका उससे इक्वल और छोटा, उससे इक्वल और छोटा इंतज़ार क्या है 1 तो इक्वल है, बाद में क्या है 0 है, देन -1 देन -2, तो उसका बॉक्स क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इफ़ x इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 मीन्स व्हाट 1.99 अप टू, ऐसे 1.9999, ये तो 2 नहीं है, 2 से छोटा है, up to this level box x is equal to what 1, box of x is equal to what 1. Similarly you can say 2 less than equal than x less than what 3, then box of x is equal to what 2 होगा। okay, similarly also we can say -1 less than equal than x less than 0, इसके लिए क्या होगा box of x becomes what -1, और -2 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन -1 होगा, तो उसका बॉक्स क्या होगा, बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट -2। आप नंबर लाइन ड्रॉ करें तो बेहतर से समझ सकते हैं ये सारी चीज़। ये है 0 देन इट इज़ -1 देन इट इज़ -2, सी -1 और 0 ये 1 है, ये क्या है 2 है, इन दोनों के बीच जो नंबर है उसका बॉक्स क्या होता है, इंटरवल की एंड लेफ्ट एंड पॉइंट होती है, उन दोनों के बीच जो होती है वो वैल्यू होता है, उन दोनों के बीच जो होगा वो वैल्यू होगा, उन दोनों के बीच जो होगा वो वैल्यू होगा। तो मैंने इक्वलिटी नहीं है, ये दोनों के बीच -1 एंड -2 के बीच क्या हो गया, वैल्यू क्या आया -2 हो गया, लेफ्ट साइड वाला होता है। -1 एंड 0 के बीच -1 होगा, 0 एंड 1 के बीच 0 होगा, 1 एंड 2 के बीच क्या होगा 1 होगा। तो दैट्स वाई you have to understand whatever with the x you are getting in all cases, these are these 2 is an integer, 1 is an integer, 0 is an integer, -1 is an integer, -2 is an integer, means what, when x belongs to r then box x belongs to z, box x क्या हो जाएगा इंतज़ार हो जाएगा, x रियल नंबर होगा लेकिन जब बॉक्स लगाएंगे वो इंतज़ार होगा। किस टाइप का इंतज़ार, इट इज़ द इंतज़ार which is greatest but less than and equal than what x. From here two properties, one very important property we get, box of x is equal to x when x exactly इंतज़ार। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, इसमें एग्जाम्पल दिया था, आई हैव गिवन एग्जाम्पल दैट बॉक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट 0, बॉक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट 1, बॉक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट 2। मीन्स जब ये 0 1 जो नंबर अंदर में है, ये अगर ये 0 इज़ एन इंतज़ार, 1 इज़ एन इंतज़ार, 2 इज़ एन इंतज़ार, जब ये x का वैल्यू इंतज़ार हो जाएगा, x इंतज़ार हो जाएगा, तो उसका बॉक्स क्या होगा x ही होगा। 0 का बॉक्स 0, 1 का बॉक्स 1, 2 का बॉक्स 2, x का बॉक्स क्या है x, when x is an integer. So when x belongs to what z, box of x is equal to what x, and number 2, box of x is less than x when x does not belongs to what z, because you see set of set, your real number is a particular set where it can be divided into two part, one is z, another is what not z, another is what not z, means complement right, means ये अगर इंतज़ार हो तो ये नॉन इंतज़ार है, जब x नॉन इंतज़ार होगा दोनों मिला के क्या है r है। when x belongs to this domain then box of x is equal to x, and when x belongs to not integer means this domain box of x less than x, less than x क्यों हुआ, I have given the example from the number line, जैसे 0.5 का बॉक्स क्या है is equal to 0, ओके, ये 0 क्या है 0.5 से छोटा है, दिस अल्टीमेटली बॉक्स 0.5 is less than 0.5, सपोज 1.2
1.2 कहाँ रहेगा, आप नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 1.2 इधर कुछ होगा बिटवीन 1 एंड 2, तो उसका बॉक्स क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। तो 1.2 का बॉक्स क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, एंड दिस 1 इज़ लेस देन व्हाट, 1.2। दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस 0.5 एंड 1.2 ये सारी चीज़ क्या है, ये क्या है, रियल नंबर है बट नॉट इंटीजर, इस डोमेन में है, इस डोमेन में होगा। दैट मीन्स दैट दे आर नॉट इंटीजर। जब इंटीजर नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, इस नंबर से छूटा होता है, इस नंबर से 1.2 से क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू छूटा होगा। दिस बॉक्स बिकम्स लेस देन 1.2। दैट मीन बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन एक्स व्हेन एक्स नॉट एन इंटीजर, बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। दिस इज द important idea we get. Okay, we are going to discuss about one particular property of greatest integer function. Okay, suppose that c is an integer. I took c belongs to what, z. c belongs to what, z. It is an integer. Okay, it is an integer. तो c का राइट में जो इंटीजर होगा, it will be added because difference between two integer is what, 1. Okay, two integer is 1. So this side में जो नेक्स्ट इंटीजर होगा ये क्या होगा, c plus 1, एंड लेफ्ट में जो इसका प्रीवियस इंटीजर होगा क्या, उसका डिफरेंस कम होगा, तो c minus 1। जैसे आप नंबर लाइन में जाओ, दिस इज़ व्हाट 2, देन दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ व्हाट 1। ये सुनो, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर, उसके साथ 1 ऐड हुआ तो 3 मिला, और 1 कैसे मिल गई, 2 minus 1। दैट्स वाई c से नेक्स्ट इंटीजर जो मिलेगी 1 ऐड करो, नीचे पीछे आओ तो क्या होगा, 1 माइनस करो। ओके, डन। एंड वी नो दैट इन बिटवीन अगर कोई भी नंबर ले लूँ इंक्लूडिंग 2 मीन्स 2 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 3, तो उसका बॉक्स क्या होता है, बिटवीन टू ए वाला होगा, लेफ्ट वाला इज इक्वल टू व्हाट, 2। बिटवीन दिस एंड दिस सपोज 1 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 2, ये दोनों के बीच अगर कोई नंबर हो तो उसका बॉक्स क्या होगा, इस बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट हैंड साइड नंबर इट इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, दिस इज द एग्जांपल। नाउ सपोज दैट h is a very small quantity, very small quantity but positive, implies c plus h। ये c plus h क्या होगा, c is an integer, c plus h does not is an, it is not an integer। Similarly h greater than 0 implies c minus h, c से थोड़ा सा माइनस कर लो तो एक रियल नंबर मिलेगी, इट इज़ नॉट एन इंटीजर, इट इज़ नॉट एन इंटीजर। नाउ दोनों का बॉक्स क्या होने वाला है, दोनों का पोजीशन कहाँ है ये चेक करना होगा। ठीक है, देखो c क्या है, एक इंटीजर से, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर जब आप जाओगे तो डिफरेंस कितना होगा, या आप कितना ऐड करना पड़ेगा, और एक सपोज 1 से आप 2 जाना है तो आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना होगा। लेकिन h क्या है, दिस h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लाइक सपोज 0.001 ऐसा कुछ वैल्यू मान लो। ओके, अगर मैं 1 के साथ 0.001 ऐड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगी, इट विल बी 1.001 एंड व्हिच कैनॉट क्रॉस 2, ये 2 से क्या होगा, छूटा होगा। तो नंबर लाइन में कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, राइट। तो 1.001 इधर कुछ होगा कि नहीं, मीन्स ये एक नंबर मैंने छोटा सा नंबर ऐड किया, जो रिज़ल्ट मुझे मिला है ये रिज़ल्ट 1 प्लस 0.001 लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, और उसका बॉक्स क्या होगा, उसका अगर बॉक्स लगा दूँ देन व्हेन आई टेक द बॉक्स व्हाट इज़ द वैल्यू, आई होप यू कैन मेक अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। यह इधर है तो 1 एंड 2 के बीच है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आ रहा है समझ में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सिमिलरली इसके पीछे वाला क्या है, 0 है, तो 1 माइनस 0.001 करूँ तो ये एक वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा, 0 क्रॉस नहीं करेगा, इट विल बी दिस इज़ 1 इन बिटवीन कुछ होगा, इन बिटवीन कुछ वैल्यू होगा, 0 और 1 के बीच होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट वाला क्या है, 0 होगा। आ रहा है समझ में। सो 1 एंड 2 के बीच हो रहा है तो दिस इज़ द वैल्यू, 0 एंड 1 के बीच हो रहा है तो वैल्यू इज़ व्हाट, 0। बॉक्स जब लगाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू आवर दिस डिस्कशन। ओके, h greater than 0 implies c plus h does not belongs to z, it is not an integer. Okay,
इट इज़ नॉट एन इंटीजर। नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी प्लस एच, इसका पोजीशन इधर होगा या इधर होगा। तो मैंने आप लोगों को कहा है अगर एच इज़ ग्रेटर देन 0 तो इफ़ एच इक्वल टू 1 होगा तो इट इज़ बिकम दिस, लेकिन एच 1 नहीं होगा क्योंकि 1 थोड़ा बड़ा नंबर है। एच इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वट एवर यू इमेजिन, इतना छोटा क्वांटिटी है। देन सी प्लस एच विल लाइज हियर इन बिटवीन। सी प्लस एच कहाँ रहेगा, ये दोनों के बीच रहेगा। एंड सी माइनस एच ग्रेटर देन 0, सी से अगर थोड़ा सा माइनस करो, ये क्रॉस करके सी माइनस 1 नहीं होगा, इन बिटवीन रहेगा। दिस इज सी माइनस एच। नंबर लाइन में क्या है, सी माइनस एच, सी माइनस एच लाइंग बिटवीन टू इंटीजर, सी इज एन इंटीजर, सी माइनस 1 इंटीजर। तो उसका बॉक्स क्या होगा, सी माइनस एच का बॉक्स हो जाएगा लेफ्ट वाला सी माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नोट करके रखो अच्छे से, नोट डाउन इट प्लीज़। एंड सी प्लस 1 के बीच क्या है, सी प्लस एच है। देन बॉक्स ऑफ सी प्लस एच लेफ्ट वाला होगा, क्या होगा, दिस इज व्हाट, सी होगा। अंडरस्टूड। नाउ वी विल टेक लॉट्स मैनी एग्जाम्पल्स। अगर मैं कहूँ 2 प्लस एच, उसका वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा। 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, हाँ 2 प्लस एच जब कहेंगे तो आप इसमें 2 मान लो, इसका 3 है। 2 प्लस एच मीन्स 2 and 3 के बीच होगा, तो 2 प्लस एच का बॉक्स क्या है, 2 होगा व्हेन एच इज़ पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एच निगेटिव हो तो क्या हो रहा है, देखो एच निगेटिव हो, सिंस एच इफ एच इज़ निगेटिव देन व्हाट हैपन, दोनों साइड से 2 ऐड करो, 2 प्लस एच, इधर भी ऐड कर लिया, इधर भी ऐड कर, लेस देन व्हाट 2। समझ में आ रहा है। Now 2 is an integer, 2 plus h not an integer, okay, this is your 2 and 2 plus h less than 2 because h negative, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐड कर रहे हो तो वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा हो जाएगा। सो नेक्स्ट इंटीजर 2 के बीच, दिस इज द इंटीजर 1, राइट। तो 2 प्लस एच लेस देन 2 मीन्स इधर कुछ होगा, ये एच इतना छोटा है कि इसको क्रॉस करके नहीं आएगा, 1 को क्रॉस नहीं करेगा। तो बॉक्स 2 प्लस एच इज इक्वल टू व्हाट, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन एच पॉजिटिव होगा, एच पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 2 प्लस एच ग्रेटर देन व्हाट, 2, दोनों साइड में 2 ऐड कर ले, 2 प्लस एच होगा, इधर 2 होगा। सो 2 प्लस एच इज ग्रेटर देन 2 मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 2 तो इसमें 3 है। 2 प्लस एच इज ग्रेटर देन 2 मीन्स उधर कुछ होगा, नॉट क्रॉस 3, इधर होगा 2 प्लस एच। तो उसका बॉक्स क्या हो रहा है, 2 प्लस एच का बॉक्स क्या हो रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट साइड वाला, दिस लेफ्ट साइड क्या, 2 and 3 के बीच 2 प्लस एच है तो इसका बॉक्स 2 होगा। सो वाई 2 प्लस बॉक्स 2 प्लस एच 2 बिकॉज एच पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट 1 बिकॉज एच नेगेटिव। अंडरस्टूड। सो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस टाइप ऑफ सेम 2 प्लस एच, दिस इज फिजिकली तो लग रहा है, हमें देखने से लग रहा है ये 2 प्लस एच है, ये 2 प्लस एच है, लेकिन ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है बिकॉज व्हाट हैपन, इट इज़ पॉजिटिव देयरफॉर 2 प्लस एच इज ग्रेटर देन 2 एंड एच इज नेगेटिव देयरफॉर 2 प्लस एच इज लेस देन 2 एंड दैट्स व्हाई आई एम सॉरी, दिस इज एच इज पॉजिटिव देयरफॉर 2 प्लस एच इज ग्रेटर देन 2 एंड एच इज नेगेटिव 2 प्लस एच इज लेस देन 2, दैट्स व्हाई इस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2 है। I hope that I can make you understand about what is greatest integer function and what actually to find all such type of results using the greatest integer function. Okay, so this is very useful function and in the next class I'll discuss about its graph and discuss about its continuity. I am taking time in this chapter because if I go hurriedly it will be little difficult for you. And if you do not understand in any part of this particular discussion, let us you give your comment on the comment box. I can definitely reply you. Okay, I can definitely reply you. Okay, my appeal to all my dear students that this type of functions are tremendous usefulness in coming days, or in your, suppose if you go to the engineering level, then you have to appear the JEE main examination, and JEE mains examination this function is very useful, उसका related काफ़ी क्वेश्चन होती है तो उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी
ज़रूरी है। तो आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बॉक्स एक्स क्या है। बॉक्स इफ़ एक्स इज़ ए रियल नंबर देन बॉक्स एक्स इज़ एन इंटीजर। कैसा इंटीजर? इट इज़ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर आइदर इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स। ठीक है, इक्वल टू एक्स कब होगा? जब एक्स खुद इंटीजर हो जाएगा तो उसका बॉक्स एक्स हो जाएगा। एंड व्हेन एक्स नॉट एन इंटीजर सम फ्रैक्शनल नंबर देन उसका बॉक्स क्या होगा? उस नंबर से छोटा वाला होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जितनी नंबर होगा ये पर्टिकुलर एक्स से छोटा जितना क्या होगा? इंटीजर होगा। एमंग ऑल दिस इंटीजर सबसे बड़ा वाला क्या है? ये बॉक्स एक्स है। वही आपका कंसेप्ट है। और let us go to this repeatedly watch the video and try to understand, write in your copy different type of integers in between them, use the concept and inculcate the concept in you. Okay, ये जो कंसेप्ट आप समझ लेंगे उसको अंदर में ले जाना होगा। अब जब ले जाएंगे तब जाके आपको समझ आएगी। एप्लीकेशन प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मज़ा आएगी। ठीक है, होप दैट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।